Hello students, as you all know that we have started the chapter first, that is crop production and management of class 8th, right? So in the previous video we have discussed about three of the steps of agricultural practices. That is, the first one was preparation of soil, in which we studied about plowing and tilling. The second one was sowing. The third one was adding manure and fertilizers. Now, the fourth step of agricultural practices is irrigation, right? So, students, please listen it carefully. All the crop plants need water for their growth. The crop plants absorb water from the soil. The amount of water in the soil is not constant throughout the year. Water from the soil is lost constantly by evaporation and percolation to lower depths of the ground. So students, it is necessary to supply water to the crop plants in the fields, and the process of supplying of water to crops or crop plants at regular intervals is called irrigation. Clear? हम regularly watering करते हैं जो plants को, crops को, तो that regular supply of watering of plant is known as irrigation. Clear? Now important question is there, what is the need of irrigation? So just as we cannot survive without water for a long time, in the same way, plants also cannot survive without water for a long time. For example, if we stop watering plants grown in our home for a considerable time, the plants become pale, wilt, and ultimately die. Water is absorbed by the roots of the plants. Along with water, minerals and fertilizers are also absorbed by crop plants. So, please remember, plants contain nearly 90% water. So these are the points that why do we need irrigation. The first one is for germination of seeds, means irrigation is necessary to provide moisture for the germination of seeds. This is because seeds do not grow in dry soil, right? The second one is to transport nutrients to plant parts, means irrigation is necessary for the absorption of nutrient elements by the plants from the soil. The irrigation water dissolves the nutrient present in the soil to form a solution. This solution of nutrient is then absorbed by the roots for the development of plants. So जो भी हम nutrient supply करते हैं, these nutrients get dissolved in water. वाटर में डिज़ोल्व होगा, डिज़ोल्व होने के बाद ही जो रूट्स हैं वो उन्हें एब्जॉर्ब कर पाएंगी, और एब्जॉर्ब करने के बाद ही प्लांट्स उसको यूटिलाइज कर पाएंगे. ठीक है. नाउ द थर्ड वन इज टू प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स. फ्रॉस्ट का मतलब जो पाला गिरता है, जो बर्फ गिर जाती है, राइट, और लू का जो टाइम होता है, हॉट एयर करंट्स, तो इससे भी इरिगेशन यानी कि वाटर हेल्प करता है. So water is supplied to the crops during irrigation protects the crop plants from hot air currents as well as frost. ये point याद रखिएगा, ठीक है. The next one is to maintain the moisture of the soil for healthy crop growth. ये बहुत important है. अगर soil में moisture नहीं होगा तो जितने भी nutrients हैं वो plant absorb नहीं कर पाएंगे, तो जो crop है वो grow नहीं कर पाएगा. ठीक है. So irrigation is necessary to maintain the moisture of the soil. Maintain करके रखता है moisture को for healthy crop growth so as to get good yield, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा yield हमें मिल सके crop की, right? Now the next one is irrigation. ये वाला point इसलिए important है क्योंकि हम जब प्लो करते हैं, ये हमने प्लोइंग और टिलिंग में भी देखा था कि अगर मिट्टी जो आपकी सॉइल है अगर वो ड्राई होती है तो उसे हम मॉइस्चर पानी डालते हैं जिससे कि प्लोइंग और टिलिंग बहुत ईजिली हो जाए. सो इरिगेशन बिफोर प्लोइंग द फील्ड्स मेक द सॉइल सॉफ्ट ड्यू टू विच द प्लोइंग ऑफ फील्ड्स बिकम्स ईजियर. ठीक है. सो
These points are the need of irrigation. Now the next one is factors affecting irrigation requirements of crop. कि भाई हम इरिगेशन तो कर रहे हैं, हम पानी तो दे रहे हैं क्रॉप्स को, लेकिन कौन कौन से फैक्टर्स है जिन पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है. सो द फैक्टर्स आर नेचर ऑफ द क्रॉप. नेचर ऑफ द क्रॉप का मतलब भाई वो क्रॉप कैसी है, खारिफ है, रबी है. ईच क्रॉप, हमें ये पता होना चाहिए दैट ईच क्रॉप needs a specific amount of water during the various stages of its growth and ripening. Some crops need more water whereas other require less water. For example, paddy crop. Paddy crop किसका किसे कहते हैं अपन? राइस क्रॉप को. ठीक है. Paddy crop is transplanted in standing water and requires continuous irrigation, whereas other crops like wheat, gram and cotton, they do not require so much water. अब आप सबको पता है कि पैडी कौन से वाली क्रॉप का एग्जाम्पल है, खारिफ का है या रबी का है. एंड वीट ग्राम किसके एग्जाम्पल हैं, खारिफ के हैं, रबी के हैं. और उनका सीजन क्या है ग्रोइंग का, राइट. सीजन क्या है, तो किसको कितना वाटर चाहिए इरिगेशन के लिए. यू शुड नो दीज पॉइंट्स. सो द फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ द क्रॉप. द सेकेंड फैक्टर इज द नेचर ऑफ द सॉइल. नेचर ऑफ द सॉइल का मतलब क्या हुआ, देखो कुछ जो सॉइल्स होती हैं वो वाटर को रिटेन करती हैं ज़्यादा, और कुछ सॉइल होती हैं जिनके अंदर, आपने 7th क्लास में सॉइल के टाइप्स पढ़े थे, जिसके अंदर सॉइल के पार्टिकल्स किसी में बड़े होते हैं, जैसे सैंडी सॉइल के अंदर, और किसी में बहुत छोटे होते हैं. फॉर एग्जांपल क्ले सॉइल. ठीक है. तो जिसमें जितने सॉइल के पार्टिकल्स बड़े होते हैं उनकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी उतनी ही कम होती है, वाटर फ्लो आउट हो जाता है. ठीक है. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल requires different amount of water. ठीक है. द थर्ड वन इज सीजन. सीजन तो हमें पता ही है दैट जो एक रेनी सीजन होता है और विंटर सीजन और समर सीजन, तो सीजन के अकॉर्डिंग भी इरिगेशन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है. ठीक है. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू. व्हाई इज फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर इन समर सीजन. कि हमें समर सीजन में ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत क्यों होती है. अब इसका क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में गिवन है, आपको पैराग्राफ में फाइंड करना है और इसका आंसर लिख के मुझे चेक कराना है. ठीक है. एंड दोज हु डू नॉट, जो मुझे चेक नहीं करा सकते, दे कैन राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज आफ्टर द फैक्टर्स द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन. सोर्सेज ऑफ इरिगेशन का मतलब अब भाई क्रॉप है, बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत बड़े फील्ड के अंदर हमें वाटरिंग करना है, तो वो किसी के थ्रू तो करेंगे. ठीक है. अपने छोटे से जो गार्डन होता है, गार्डन में तो हम इजीली वाटरिंग कर देते हैं. ठीक है. लेकिन बड़े फील्ड में कैसे करें. सबसे पहले वी हैव टू नो दैट व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर. रिवर्स, कैनाल्स, वेल्स, ट्यूब वेल्स, डैम्स, ponds or lakes, and rain also a source of water. So these are the different sources of water. Now how can we provide water to the crop? These are the methods through which we can do the irrigation. So there are two types of methods. The first one is traditional and the second one is modern method. तो पहले हम traditional method की बात करते हैं. These are the four methods: moat, that is pulley system, chain pump, ढेकली and राहत. तो इन चारों मेथड्स को एज सच हमें याद करने के, लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वी हैव टू नो द डायग्राम कि इन मेथड्स में एक्चुअली जो फार्मर्स होते हैं वो कैसे इरिगेशन करते हैं. सो देखिए, दिस इज अ डायग्राम ऑफ द सिस्टम मोट की ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन. इन द मोट सिस्टम ऑफ इरिगेशन वाटर इज ड्रॉन आउट फ्रॉम अ वेल. ये एक अपनी वेल है, वाटर इससे निकाला जाता है, ड्रॉन आउट फ्रॉम द वेल बाय यूजिंग अ बिग कंटेनर. ये रहा आपका बिग कंटेनर, टाइड टू अ लॉन्ग रोप विच मूव्स ओवर अ पुले. ठीक है. ये आपकी लॉन्ग रोप है, ये आपकी पुले है, तो इससे आपने कंटेनर को बांधा हुआ है. फिक्स्ड एट वन एज ऑफ द वेल, और इस पुले को हमने एक एज पे बांधा हुआ है. द रोप टाइड टू द कंटेनर इज यूजुअली पुल्ड बाय एनिमल्स सच एज बुलक, बफेलो से या कैमल से. When the rope is pulled at the free end, the container filled with water and the water comes out of the well. ठीक है. So in this way the farmers use the method mode for irrigation.
दिस इज द सेकेंड मेथड, दैट इज चेन पंप। देखिए चेन पंप में क्या होता है, ये आपका एक यहाँ पे व्हील लगा हुआ है, एक व्हील यहाँ लगा हुआ है। जो लोअर व्हील है वो वाटर सोर्स के अंदर है, जैसे स्ट्रीम है। इस लोअर व्हील से यहाँ पे देखिए बकेट्स लगी हुई हैं और ये एक चेन है, तो ये मूव करती रहती हैं चेन्स। और जैसे ही ये वाला जो बकेट है ये इसके अंदर डिप होगा, ये वाला बकेट यहाँ से आया, यहाँ पे इसके अंदर गया, वाटर से फिल हुआ, फिर ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पे फील्ड से पानी दिया, फिर वापस हमने इसको मूव कराया, फिर अपर व्हील के थ्रू यहाँ से मूव किया। तो इन दिस फॉर्म थ्रू द चेन पंप द वाटर गेट इज रेगुलरली फिल्ड इन द बकेट and the bucket emptied in the fields for watering the plants. देखिए थर्ड वन इज ढेकली। ढेकली में क्या किया है, ये एक वेल है, वेल के अंदर आप देखिए यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम है, उसके थ्रू एक लॉन्ग आर्म को लगाया हुआ है और वहाँ पे एक स्टोन या कोई भी वेट को इसे टाई किया हुआ है और इसके इस एंड के ऊपर क्या है, बकेट लगी हुई है। अब जैसे इसको हमने बकेट को इन्होंने स्ट्रेच करके नीचे वाटर के अंदर डाला, पानी जैसे इसके अंदर फिल हो जाएगा बकेट के अंदर, बकेट में वाटर को फिल होते ही ये जस्ट इसको रिलीज करेंगे और वाटर ऊपर आ जाएगा। फिर इसको खाली किया, फिर वापस से बकेट इसके अंदर गई, तो एक लीवर आर्म की तरह काम करता है ये, ठीक है। सो इन दिस वे द वाटर गेट फिल्ड इन द बकेट, हमने इसके अंदर इसको रिलीज किया, जैसे बकेट भर के आएगा हमने वेट को रिलीज करके इसको वापस से ऊपर की तरफ ले लेंगे। सो इन दिस फॉर्म ढेकली वर्क्स। द फोर्थ वन इज द राहत। राहत में क्या होता है, यहाँ पे आपके ये बुलक की हेल्प से ये लीवर चारों तरफ घूमता है, घूमते हुए यहाँ पे इसके कंटेनर लगे हुए हैं, कंटेनर जाएगा वाटर में डिप पानी लेके आएगा, पानी लेके फिर ये फील्ड के अंदर यहाँ से रिलीज कर देते हैं, ठीक है। सो दीज आर द 4 मेथड्स ऑफ इरिगेशन, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, दैट इज मोथ, पुले सिस्टम, चेन पंप, ढेकली एंड राहत लीवर सिस्टम। Now the modern methods, there are 2 modern methods, sprinkler system and drip system। बहुत आसान है। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, आपके एक पाइप लगा हुआ है, ठीक है, एक लॉन्ग पाइप लगा हुआ है फील्ड के अंदर। इस लॉन्ग पाइप के बहुत सारे स्मॉल पाइप्स लगे हुए हैं जिनके अंदर नोजल है। अब ये रोटेटिंग नोजल्स हैं और नोजल्स क्या करते हैं, ये आपने बहुत बार आप कहीं भी किसी भी फील्ड में, ये तो बहुत यूज़ होता है फील्ड में, आपने देखा होगा आजकल आपके जो, अगर आपने बड़ा गार्डन देखा आपके स्कूल के अंदर होगा तो वहाँ पे भी इसी मेथड के थ्रू इरिगेशन होता है। ये नोजल्स के थ्रू वाटर रिलीज होता है और वाटर उस एरिया के अंदर, पर्टिकुलर एरिया के अंदर वाटर को स्प्रिंकल करता है, ठीक है। सो दिस इज द स्प्रिंकलर सिस्टम। दिस इज मोर यूजफुल इन द अनइवन लैंड और बेसिकली इन द सैंडी सॉइल, क्योंकि सैंडी सॉइल में लगातार हमें वाटर की जरूरत पड़ती है। तो ये वाला जो मेथड है इसके थ्रू वी कैन ईजिली प्रोवाइड द वाटर। The fourth one is, now the second one is drip system. Drip system is the best technique of irrigation for fruit plants, trees and gardens. In the drip irrigation system, there is a network of narrow pipes or tubes with small holes in the fields. When water flows through the narrow pipes, it falls drop by drop at the position of roots of the plants. This water is absorbed by the soil in the root zone of the plants and utilized by the plants. There is no runoff or wastage of irrigation water. Drip system is the best technique for watering these plants, right? So these are some advantages of drip system. The first one is it provides water to plants drop by drop, so water is not wasted at all. It minimizes the use of water in agriculture and it is very useful in those regions where the availability of water is poor. तो बच्चों these are the methods through which irrigation takes place. I hope आपको समझ में आ गया होगा। ट्रेडिशनल मेथड, मॉडर्न मेथड, क्यों ज़रूरत है इरिगेशन की, क्या क्या सोर्सेज हैं और क्या क्या मेथड्स हैं, राइट। So students, after studying the irrigation, that is the 4th step of agricultural practices, we are now studying the 5th step of agricultural practices, that is weeding. So before weeding we should know what are weeds. So the unwanted plants or wild plants which grow along with the cultivated crop are called weeds, ठीक है। So ये ध्यान रखना कि whenever we grow a food crop in the field, then in addition to the crop plants, many small unwanted
plants also germinate and grow in the field naturally. और इन्हीं अनवांटेड प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? वीड्स कहते हैं. सो हमें इन वीड्स को हटाना ही होगा, राइट? सो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम अ क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग. ये डेफिनेशंस हैं जो आपको याद करनी है. वैसे भी इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स तो आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी. यू कैन इजिली राइट द डेफिनेशन दैट द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम अ क्रॉप फील्ड इज नोन एज वीडिंग. These are the examples of weeds, that is wild oat, grass, amaranthus, chenopodium, bathua. ठीक है? These are the examples of weeds. Now a question arises, what is the need of weeding? जैसे अभी अपन ने बोला unwanted plants हैं, तो भाई unwanted plants हैं तो हमें क्या हार्म कर रहे हैं? हमें क्यों उन्हें हटाने की जरूरत पड़ रही है? So please remember they consume a lot of fertilizer. भाई हम जो फर्टिलाइजर प्रोवाइड कर रहे हैं या मैन्योर प्रोवाइड कर रहे हैं हम क्रॉप के लिए कर रहे हैं, तो जो वीड्स होगा वो भी उनको यूटिलाइज करेगा. जब उनको यूटिलाइज करेगा तो किसके लिए कम पड़ जाएगा? क्रॉप के लिए. ऑल्सो दे कंज्यूम वाटर, सनलाइट एंड स्पेस मेंट फॉर द क्रॉप प्लांट्स एंड रिड्यूस द क्रॉप ईल्ड. ठीक है? सो दिस इज द नीड ऑफ वीडिंग. अब अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ weeds is before they produce flowers and seeds. भाई अगर flowers and seeds produce कर दिया तब तो फिर और weeds grow हो जाएंगी. तो उसको उसी स्टेप पे रोक देना है कि जब we are able to recognize the weeds, हमने recognize कर लिया कि भाई ये तो crop plant है और ये weed है. अभी इनमें flowers नहीं आए हैं, seeds नहीं आए, उससे पहले ही आपको weeding वाला process करना पड़ेगा. ठीक है? Now the methods of weeding, the first one is by pulling them with hand. अगर छोटा आपका फील्ड है तो आप क्या करें? यहाँ पे आपके पास वर्कर्स ज्यादा हैं, फार्मर्स ज्यादा हैं, तो क्या किया? हाथ अपने हैंड से उनको उखाड़ के फेंक दिया. हम अपने घर में गार्डन में यही करते हैं, अपने हाथ से उखाड़ के फेंक देते हैं कि जो भी वीड्स होते हैं. सेकेंड, बाय यूजिंग अ थ्रॉवल. थ्रॉवल का मतलब क्या होता है? खुरपी जो होती है, छोटी वाली खुरपी या खुरपा होता है, उसके थ्रू हमने वीडिंग वाला प्रोसेस किया है. द थर्ड वन इज बाय स्प्रेइंग वीडीसाइड्स. वीडीसाइड्स को स्प्रे करना ये लार्ज एरिया के अंदर होता है. ठीक है? सो लेट्स डिस्कस द थर्ड पॉइंट इन डिटेल. सो वीडीसाइड्स आर द पॉइजनस केमिकल्स विच आर यूज्ड टू किल वीड्स इन द फील्ड्स, राइट? सो इन्हें हम क्या कहते हैं? वीडीसाइड्स कहते हैं. एग्जाम्पल्स आर 2,4-D MCPA. अब आपका काम क्या है? आपको मुझे फुल फॉर्म बतानी है 2,4-D की और MCPA की. ठीक है? सो वीडीसाइड्स क्या हो गए अपने पास? वो पॉइजनस केमिकल्स हो गए जो हम यूज करते हैं टू किल द वीड्स इन द फील्ड्स. ठीक है? अब हम ये यूज कैसे करते हैं? अ सोल्यूशन ऑफ वीडीसाइड्स इन वाटर इज स्प्रेड ऑन द स्टैंडिंग क्रॉप्स इन द फील्ड्स विद अ स्प्रेयर. स्प्रेयर की हेल्प से हमने क्या किया? वीडीसाइड का सोल्यूशन बना लिया वाटर के अंदर और स्प्रेयर के थ्रू हमने वो जितने भी स्टैंडिंग क्रॉप्स हैं उनके अंदर हमने उसका स्प्रे कर दिया. ठीक है? नाउ दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, precautions to be taken while spraying the weedicides. अब हमें ये पता है कि जो weedicides होते हैं वो केमिकल्स होते हैं, पॉइजनस भी होते हैं. तो जो इन्हें स्प्रे कर रहा है, जो भी फार्मर इनको स्प्रे कर रहा है, अगर वो उनके कांटेक्ट में ज्यादा आता है तो इट विल हार्म दैट फार्मर. सो ड्यूरिंग द स्प्रेइंग ऑफ weedicides द पर्सन शुड कवर हिज नोज एंड माउथ प्रॉपरली विद अ पीस ऑफ क्लोथ. ठीक है? सो स्टूडेंट्स, दीज आर अभी तक हमने कितने स्टेप्स कंप्लीट कर लिए? द फर्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, द सेकेंड वन इज सोइंग, थर्ड वन इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, फोर्थ वन इज जो अभी अपन ने समझा था इरिगेशन, एंड द फिफ्थ वन इज वीडिंग. ठीक है? सो अभी तक हमने 5 स्टेप्स क्लियर कर लिए हैं. अभी अपने पास 2 स्टेप और बचे हैं, दैट इज हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज. क्लियर? सो आई होप कि अभी तक आपको स्टेप्स सारे क्लियर हो गए होंगे. Please make the notes, see the video 2 or 3 times and try to understand. Clear? Thank you, बच्चा.